I hope you can see my screen. Yes, sir. Can you? Yes, sir, I can. Yeah. All right. Hello. Yeah, just a minute. I don't know. I'm constantly getting some messages right now for OTP, OTP, OTP. Oh my God. I don't know what happened. डोमिनोज का, फ्लिपकार्ट का, स्नैपडील का, सबका मेरे को ओटीपी आ रहा है। सर कितने नोटिफिकेशन है? 10, 12, 15, 16। अरे सर, आपको कोई प्रैंक कर रहा है। हाँ हाँ। ये देयर इज एन ऐप नोन एज बॉम्बे टप। इससे ये सब होता है। मतलब 1-2 साल पहले किया था ये सब मैंने तो। अरे वायरस घुस कांस्टेंट जाता है फोन मैसेजेस में। आ रहा है, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। सर आपको आपके साथ किसी ने प्रैंक किया है। हाँ हाँ। क्या अभी क्या कर सकते हैं टू अवॉइड दैट? सर टेक्निकली कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अभी एक काम कर सकते हो। मतलब आप सेटिंग्स में जाके मैसेजेस के जो नोटिफिकेशंस रहते हैं ना, उसको ऑफ कर देते हो। हाँ, तो वो फिर आपको ये साइलेंट ही आएंगे ही नहीं। है, मतलब साइलेंट ही। जो लेकिन मुझे कर रहा डर है है। कोई मेरा डेबिट कार्ड कुछ वगैरह हैक वैक नहीं किया रहेगा ना अकाउंट अकाउंट से। अपोलो, डियर अपोलो वो सर ये कस्टम। प्योरली प्रैंक है। अच्छा। ये प्योरली एक प्रैंक ही रहता है। मतलब कुछ ऐसा हैक वैक कुछ नहीं होता, सब डराने के लिए रहता है। हम्म। हाँ हाँ। फर्स्ट टाइम लेकिन आ रहा है। हाँ। जिसने डाउनलोड किया है ना फोन में, उसके फोन में वायरसेस घुस जाते हैं। अच्छा। आपके फोन में नहीं। जिसने डाउनलोड करके प्रैंक किया है ना, उसके फोन में वायरस घुस जाता है। इसलिए तो मैंने बहुत पहले डाउनलोड किया था, तभी डिलीट मार दिया था सुन के। क्या ऐप? हाँ हाँ। ओके। मस्ती किया किसी ने। ओके। ऑल राइट। मेरे को अभी ऐसा ध्यान में आ रहा है कि मेरी बैंक का कोई मैसेज ना आ जाए कि भाई इतना अमाउंट माइनस हो गया करके। नहीं सर, वो सब कुछ होगा ही नहीं। मतलब मैंने आपको इसलिए पूछा कितने नोटिफिकेशंस आए हाँ, ओटीपी के। मैनी आई मीन फर्स्ट टाइम मैंने इतने सारे नोटिफिकेशन देखे फ्रॉम फ्लिपकार्ट, लेंसकार्ट, डोमिनो, एपोलो, नेटमेड, सारे ऐप के ही ये लगता है। प्रैंक किया पूरा, कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है। ऑल राइट। सो इन प्रोग्रामिंग, ये आवाज क्यों इको हो रहा है? ओके, इन प्रोग्रामिंग यू कीप द म्यूट, मे बी आपको जरूरत है तो आप पूछना। इन प्रोग्रामिंग देर आर कंपोनेंट्स, or I can say parts of programming. So if I'll say variable, constant, operators, and yeah, right now itna. And if I'll ask you few information, or consider as data. So I say give me your data. Then Nihar, what will you say? Give me your data. If I'll say, what will you say? If I'll say give me your data, what will you say?
Sir, why do you want my data? No. I'm asking that give me your data. What do you understand by that question? They want some particular information of some kind. Yeah, so what information you will share as a 10th pass student? Basic 1, 2, Sir, 3. Only 1, 2, 3 information. Like, it depends what they are asking means. correct. So don't go in that much specific detail, just in general. Okay, it can be your personal details like your age Age, or your weight, your height. Okay, weight, it can be your education, your educational background, like correct, the boards that you got educated from. correct. Then Last it exam can you be have your passed. religion. It can be your religion or Yeah, your religious background. perfect. So let's write down the values now. Values. So every information has some values. So if I say age, so what value you will offer right now? What is your age? 16, 16. And how about your weight? Anything, some number? 60. 60. And then height is anything. Randomly, I'm writing 5, let's say 5'10". But then I want, चलो मुझे height नहीं चाहिए. And last exam score in percentage. How 90. much? 90. Can I write 89.9? Okay. Just hypothetical number, okay? Okay. Hmm. So, are you logged in through two devices? No, sir, just the laptop. अच्छा, because whenever you are speaking कुछ इको आ रहा है. चलो ठीक है. Sir, are you comfortable taking lectures on Zoom? In Zoom, I have to logged in after every 40 minutes, so I'll not comfortable in that. Sir, it's just in case of means if there are more than two people, no, हाँ. only then it is that case. But if there are two people, then you can keep it going on for अच्छा, 2 hours. हाँ बराबर है, वो भी ठीक है. या तो उसमें नहीं, करते हैं बिकॉज बाद में. उस पे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, शेयर हाँ स्क्रीन वगैरह सब कुछ की. हाँ, वो तो आई एम यूजिंग जूम तो, बट हम लोग ये अनइंटरप्टेड करने के लिए यूज करते हैं. बट इट इज ओके, नो प्रॉब्लम. हम लोग एक बार जूम भी ट्राई कर लेंगे. अभी कंटिन्यू करते हैं राइट नाउ. देन वी कैन मे बी लॉग इन बाई जूम अगर कंटिन्यूस ऐसी प्रॉब्लम आई तो. चलो ठीक है. सो दिस इज वैल्यूज. तो नाउ कैन यू टेल मी विच इज कांस्टेंट एंड विच इज वेरिएबल? Okay, values are variable. So हाँ हाँ, ये जो all the 16. values are variable, no? हाँ, it is a variable. But is 16 a variable or constant? It's a constant. Yeah, it's a constant, absolutely. Correct. So it's a constant. All the values, in fact, are constant. But Okay. when I say that I'm storing age equals to 16, and in one of the case मुझे थोड़ा laziness आया कि why should I write इतना बड़ा variable called age, age, तो मैंने लिखा a equal to 16. So For this me is a right now, variable. 16 is a constant and a is a variable. Can I say that? Yes, sir. Why a is called variable? Because I can next moment may I can write it down some different value. It depends on the RHS. Correct. It's depend upon the RHS. So the moment I'll say a equals to 17, in memory there is a one block occupied and it has some value.
that value is basically 16, and that block has some name, that is A. And on the next line you said A equals to 17, that 16 went and 17 is now the latest value. Can I say that? Yes. Anna. So what is A? So A is nothing but just one variable. तो वेरिएबल का डेफिनेशन क्या हुआ? सो इन फिजिक्स यू विल से डिफरेंट definition, and in programming you can say different definition. It holds constant. Simple. It holds the constant value, or it can store the constant value. ऐसा. It holds the constant value, it holds or it stores the constant value. It's called variable. और आप फिजिक्स में बोलते हो which varies. Of course यहाँ पे भी vary हो रहा है. तो that 17 is a constant, and 17 जिसमें store हुआ, I will say that it is a variable. That's called age or A, or maybe I will say number equals to 90. You know, these all are an examples of constant and variable. Now, what is the difference between two constants value called 16 and 18? 9.9. क्या difference दिख रहा है? So एकदम clear है कि एक में decimal value है, एक में नहीं है, right? This is the whole number. This is the decimal value. ये लोग जो decimal values है, that's considered as a float. So there is a something called as keyword in programming language. What do you mean by keyword? So keyword are nothing but some special meaning words which has some special meaning. When I say SSC, you understood what do you mean by SSC, and when I say ICSE, you also understood by that. When I say PVT LTD, maybe with the knowledge you will understand, oh, it's a private limited. So I consider these all as a keywords. वैसा programming language whenever you learn, every programming language has some keywords, you know, that you have to learn when you learn the new language. And when you were learning English language, you were learning few words first time. Have you learned a French language? No, sir. I do हाँ. Gujarati. अच्छा. Okay. You don't had in school other Huh? language? Any other language in a school? We had three choices. It was either, no, actually four: French, Sanskrit, Marathi, or Gujarati. Although you So learn I Gujarati. opted for, yeah. Yeah. So maybe in Gujarati you started with alphabets, right? And then words. Being a Gujarati language you learn, you could, I mean, you can write something in a Gujarati, right? So how it is possible to write a paragraph? How it is possible to write a paragraph? It is just because you are able to write alphabets, words, statements, and everything. And then followed by paragraph. That's called alphabets. Uska collection become words. Uska collection becomes statements. And uska collection becomes paragraph. Now, very similarly,
When I want to learn programming language called C or C++, I have to start with variables, constants, operators, keywords. इतना मुझे सीखना पड़ेगा पहले. So उसमें से I opened my first topic called constant. So what do you mean by constant? कितने types होते हैं? तो I said I have a whole number is a one type of constant. I have another value called decimal. I have fractions. another constant like this. सिंगल कोट के अंदर मैंने y लिखा. And then I said yes, this is the double quotes के अंदर is a different type of constant. So which are the type of the constants possible? It is called integer, जिसको ये लोग int बोलते हैं. Decimal, जिसको ये लोग float बोलते हैं. Character, जिसको ये लोग char बोलते हैं. And there is a string, जिसको ये लोग STR. character array बोलते हैं. सर STR कुछ तो देखा था मैंने. हाँ. So it's a character array. So these are the various types of constants. तो कांस्टेंट का एक टाइप होता है, तो दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेटा? इंफॉर्मेशन. एंड एवरी इंफॉर्मेशन हैज अ सम टाइप. सो आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले लो, इट मस्ट हैव अ टाइप, आइदर इंट, कैर, फ्लोट और कैरेक्टर एरे, जिसको आप राइट नाउ स्ट्रिंग बोलो चलेगा. इंट, कैर, फ्लोट और स्ट्रिंग, उसी में से कुछ होगा. एनीथिंग. Let me change the product. I say laptop. So which information of laptop you will share with your friend? Let's say brand, color, size, price, color, processor. So these are the basic information. So this is nothing but called as a information. Now it has a value. Let me write it down value. It's a 14 inch. मुझे इंच में अभी इंटरेस्ट नहीं है. 14. प्राइस 57,000. कलर ग्रे. प्रोसेसर 3.1. Again, I am not interested in unit called gigahertz. Absolutely fine. So what is 14 का type? Can you tell me quickly? 14 inches. हाँ नहीं, उसका data type. Data type. When I say data type, you have these are the data INT. types. Yeah. Integer. So तो int. हम लोग उसको integer pronounce करेंगे. Yeah, it's int. Okay. Then what about this one? This is also an integer. So int. Yeah, very good. So let me clear with that. We have another data type called long integer. Why? Because integer has a capacity called 32,768 is the largest number which you can store. I hope you understand with capacity. Your mobile, my mobile has some capacity. Beyond that, you and me cannot store. So this is the largest number which you can store in integer from positive to negative. उसका मतलब, if I want to store 33,000, I'm talking about the value 33,000. I cannot store it in integer.
Yes, sir. So I Long have a integer. long integer, integer का बड़ा भाई. सर लॉन्ग इंटीजर की मतलब लिमिट है. हाँ, उसकी भी लिमिट है, बट 2 रेज टू समथिंग 18 या ऐसा कुछ है. 2 रेज टू 18 नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब द ह्यूज नंबर. तो हम लोग के पास डेटा स्टोर करने के लिए योर एंड माई लाइफ में यूजुअली जरूरत नहीं पड़ता कि लॉन्ग इंट के आगे जाना पड़ेगा. बट स्टिल यू हैड अ डाउट, देन यू कैन गो एड विथ फ्लोट, क्योंकि फ्लोट इज बिगर देन अगेन लॉन्ग इंटीजर. Okay. एंड And कैन the आई color स्टोर. gray, that's a character array or just character? हाँ, तो ग्रे इज अ स्ट्रिंग. हम लोग अभी उसको मैं स्ट्रिंग बोल दूं, चलेगा राइट नाउ? Yes, sir. Sir, but what is the difference between character and character array? Yeah. So at this level, I can say that character has only one character long. एक ही कैरेक्टर होता है. देखो यहाँ पे मैंने y में एक ही कैरेक्टर लिखा था. Okay, हाँ समझा. And then when I say array or character array, or when I say string, I can say it is a collection of more than one character. But tomorrow I want to store it as a single character, then also I have to use double quotes. हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा बोलते थे, बट यहाँ हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको डबल कोट सिंगल कोट बोलते हैं. डबल कोट. इन कीबोर्ड लैंग्वेज दे से सिंगल कोट एंड डबल कोट. या सो कंसीडर दैट दीज आर द वैल्यूज एंड उसका डेटा टाइप. सो व्हेन आई से दिस इज माय कांस्टेंट वैल्यू, और उसके बाजू में मैंने उसका जो लिखा है दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप. मैंने इतना सीखा यार राइट नाउ के लिए. कांस्टेंट का स्पेलिंग गलत है. So right now I taught you what is constant and what do you mean by data type. So which are the data types? Can you just speak aloud? Which are the data types? Okay, there are integers, Hmm? that is int. Then there's characters, Hmm? which are represented by char, so char. Hmm? Then there is string, that is a character array, Hmm? and there are decimals, which are also known as float. Very good. And there is one more integer ka bada bhai. Long integer. Long integer. Perfect. So these all are the keywords and they are the data types. Now when I say प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++ which we are learning is a case sensitive. Now when I say case sensitive मतलब upper case and lower case. Lower case का मतलब do you know? Sir, means small alphabets, means Small alphabet. capital A and small a. This is capital. So when I say it is a case sensitive programming language, that means अपर केस में मैंने कुछ लिखा एंड लोअर केस में लिखा, ही हैज अ डिफरेंट मीनिंग. सो व्हेन यू गो टू रेस्टोरेंट एंड यू फाउंड पिज्जा इन अ स्मॉल and in the next restaurant you found pizza in a capital, in hotel industry do both the pizza type return is a different or the same? It's different in C++. Yeah, and That's what you're it's in saying. the same in the hotel industry, right? Yeah. So hotel says कि भाई हमारे लिए pizza is pizza, whether it is capital or small doesn't make any difference. And maybe they have कि भाई if it is below 300 का हमने small में लिखा, above 300 का है तो capital में लिखा, सामने वाला customer पूछेगा ही नहीं what's the price. तो ऐसा नहीं है. But in programming language it has a difference. Okay, it has a difference. So you have to be careful that in our programming language everything we write is in a small, that is lower a to z.
स्मॉल A to Z में लिखना है एवरीथिंग. Yes, sir. Okay, तो now I am writing मेरा डेटा टाइप इंट. लॉन्ग लिखा तो भी चलता है, लॉन्ग इंट लिखा तो भी चलता है. बोथ हैज द सेम मीनिंग. Then I got char and float. These are my data types. इतना सीखा मैंने अभी. Yes. Good. So मेरा एक छोटा सा टॉपिक है कांस्टेंट. तो वो कांस्टेंट अभी you know what do you mean by constant. The only thing you should remember about the constant is confusing कि there is a single quote and double quote. ये रहा सिंगल कोट एंड ये रहा डबल कोट. दैट्स द कांस्टेंट. ठीक है, डेटा टाइप भी क्लियर हो गया. सो मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया कि A which has a 16, now I said 17. That's the reason. इको हो रहा है. हाँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मीन्स मुझे परफेक्टली आ रहा है. हाँ मेरे यहाँ पे इको आ रहा है सामने की साइड से. चलो ठीक है. सो नाउ if A is equals to 16, in the next line I said A equals to 17. That means A is a variable. That means A is a variable. Or can I write A equals to A plus 2? Then consider कि right hand side में you got A. What is the A का previous value? So it is 16. But अभी latest में क्या है? 17. 17 plus 2 is going to be 19, again stored in A. That means वापिस A का वैल्यू चेंज हो गया. And now latest value is 19. तो मुझे इतना रन करके देखना है कि ये 19 दिखाता है कि नहीं. I want to test myself. Is my concept is correct or not? So how will I do that? So for So can you that we please have repeat the some question? compiler available. So I am introducing one of the compiler called Turbo C++, which is very popularly used. थोड़ा पुराना है लेकिन वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट यूज होता है. इट इज डॉस बेस्ड सॉफ्टवेयर. डॉस बेस्ड का मतलब उसमें माउस नहीं चलता. फॉर अ सेकेंड वो आपका स्क्रीन को फ्लिकर करेगा एंड देन छोटा साइज का स्क्रीन हो जाएगा. Are you able to see the blue screen? Yes, sir. Great. So when I say already previous कोई प्रोग्राम ओपन हुआ, I'll say file and new. So there is a file name came. There is a file created. Can you see the name of the file is no name 00. .cpp. Yes, sir. So
So here I'll start writing my program. As we decided A equals to 16, next line I said A equals to 17, and then next line A equals to A plus 2. सर ए इक्वल्स टू है थर्ड वाले में A equals to A plus 2. ओके Whatever we discussed there, वही मैं लिख रहा हूं यहाँ पे. So now what happens? Let us check. There is a compiler called LOSSBOX. In that I am writing my program. As in the English language, we learn every statement is terminated with semicolon. Here every statement is terminated with semicolon. I am sorry, English में हम लोग full stop करते हैं. यहाँ पे we had a semicolon. That's one rule you have to learn in a turbo C++ की language. कि भाई C++ में every statement is terminated with semicolon. लेकिन there are few exceptions. वो हम सीखेंगे आगे. All right. So now before I compile, मुझे डर है मेरा प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ हो गया, सॉफ्टवेयर क्लोज हो गया, तो आई हैव टू राइट these statements again. तो लेट मी सेव माय प्रोग्राम. तो मैंने क्या किया, वो जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ना, ऑल आर द शॉर्टकट्स अवेलेबल. सो व्हेन आई प्रेस ऑल्ट ई एंड एफ तो आपको ये आ जाएगा, एंड देन आई विल से एस. तो सेव बटन का आ गया. आई विल गिव यू दिस सॉफ्टवेयर टुडे. ठीक है, तो let us assume that I want to give my file name as constant.cpp. So I said okay. So file will be saved as constant.cpp. Now my next step is to compile. There is a shortcut. Can you see Alt and F9? Yes, sir. So I am compiling and I am getting 5 errors right now. So I am wondered what are the errors. So it says that type name expected, variable a is initialized more than once. ठीक है, type name expected, variable a is initialized more than once. ठीक है. So now it is saying कि भाई a है क्या. So I'll say int a. What is a? I said a is a int a. That means it is integer. Now I compile. I got one more error. Type name expected. So whatever the program I have written, उसको ना मैंने ऐसे ही हवा में छोड़ दिया. Like you have a pen, you have a scale, you have a pencil, you have a eraser, और ऐसे ही उसको टेबल पे रख दिया. But your mom or your dad said कि why don't you put it in a some compass box or maybe in a one box. You don't have a compass box, consider. तो आपके बाजू में कुछ अमेजोन से गिफ्ट आया था, उसका एक बॉक्स था, उसमें रख दिया. सो दैट इज माय कंसीडर एज अ बॉक्स. और उसके ऊपर मैं लिखता हूं कि इट्स माय कंपास बॉक्स. तो मैं लिखता हूं मेन, मतलब ये मेरा बॉक्स का नाम है. I come to you in detail what is main. Right now just we are solving the errors which we came across. इतना चेंजेस किया, मुझे वापस डर है कि शायद बंद ना हो जाए. लेट मी सेव माय प्रोग्राम. लेट मी कंपाइल. I got surprising 0 error. That was the problem, that you are writing any statement without main, not allowed. What is main I come across later on, just after a few minutes.
but right now I am interested to show you the output. तो मुझे उधर जाने दो, अलाउ करो जस्ट. सो मेरा वार्निंग को भी मैं अवॉइड करता हूँ. चलो साइड में गया, वार्निंग चलेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड वार्निंग. Yes. वार्निंग, कंसिडर कि यू केम लेट इन द क्लासरूम एंड आई से नहीं, यू हैव टू बी ऑन टाइम. मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ. And then you are regularly coming late, so then I have to speak with the higher authority. नहीं यार, ये नहीं चलेगा. Why madam should wait for a one student? So उसको मैं error बोलूंगा कि we cannot proceed further until you solve the that error. तो ये error है. error मैं आपको दिखाता हूँ, आपको आया भी error. So now we will move one step ahead. I got constant, I got variable, and I got data type. Can you tell me which is the data type in this? Yeah, Integer, no? wow, perfect. And what is the variable? Which is the variable one? The variable is a. Yeah, and the constants are 16, 17, and 2, right? Yes, sir. Yeah. So now I want to display the value of A. What is the value of A latest right now? 19. No, Nine, 17. 19? अच्छा हाँ, like after calculating 19. Yeah, 19. But if I'll display here where my cursor is, will it be 17? Can I say that? तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूं, सॉरी आपको C++ है, सी आउट करता हूं, डिस्प्ले करता हूं एक मैसेज, वैल्यू ऑफ A, डबल कोट्स. डोंट वरी, आई विल टीच यू एवरीथिंग. एंड वही स्टेटमेंट मैंने कॉपी किया और नीचे जाके पेस्ट किया. तो क्या आता है देखते हैं जरा. So I want to again save my program. I want to compile. I got the errors. Undefined symbol cout. Programming में anything you write it down, it will throw you an error. Any unknown thing you write it down, it will throw you an error. So you are not allowed to use or write any extra word or statement. Remember. So what is cout? Cout is a one command to display some value. So I want to display cout के through. तो ये cout किधर है? तो cout is in one header file. Can you read that? थोड़ा small handwriting में है, I mean characters में है, but that is what the DOS is saying. Include Is it iOS stream.h. perfect? So what is iostream.h? Let me go through that. I have a C programs, उसके अंदर प्रोग्राम फाइल्स टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर डिस्क, डिस्क के अंदर टर्बो सी, उसके अंदर बिन, बिन नहीं इंक्लूड, और उसके अंदर iostream डॉट मिलेगा आपको, ये रहा. So this is my header file which came across whenever I installed the software called C++. So consider that cout is a one command
which you are going to use to display something, and that cout is defined in the header file called iostream.h. That means whenever you are using cout word in your program, you have to use hashtag include iostream.h. आपको लिखना पड़ेगा. I repeat, whenever you are using cout, you have to use hashtag include iostream.h. Why? क्योंकि cout का डेफिनेशन किसके अंदर है? iostream के अंदर. It is there in iostream. ओके. ओके, मैं सेव करता हूं, वापिस कंपाइल करता हूं मैं. आई गॉट 0 एरर, वार्निंग आया. वार्निंग वही है जिसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं. ऐसा एंटर किया, फिर रन करने के लिए मैंने रन किया. कोई डिस्क का मैसेज आया. दैट्स ओके. नहीं कुछ. आउटपुट आया और चला गया, हमको दिखा भी नहीं. इट्स दैट फास्ट. आई कैन सी द आउटपुट. विंडोज के अंदर कहीं पे आउटपुट लिखा है. कैन यू सी दैट? यस सर. सो मैं उसको करता हूं क्लिक, तो ऐसा कुछ नीचे आया. क्या आया देखता हूं नीचे. कैन यू सी? यस सर. So this is the answer. This is the answer. 17 and then 19. So now why it is, I mean, coming for 2 times? Because we run 2 times, if you remember. Yes sir. And now, just a minute. So now I'll close this output wala window. Okay. And yes. And now I'll use a few of commands to look at the output upfront. मेरे सामने दिखना चाहिए. Why should I go to Windows और Windows के अंदर output वगैरह क्यों करूं मैं? So I said मुझे directly देखना है. I have used a command called getch. Can you see getch at last? Yes sir. Now I'll run again. So it's throwing me an error. What is getch? वापिस as I said unknown कुछ लिखा. It's throwing an error. Okay. So getch is again in some header file, which I have to write it down. यहाँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं चलता. So I'll show इनसे you माउस भी later. नहीं है ना. हाँ, माउस भी नहीं है ना. हाँ माउस है, बट कभी कभी चलेगा वरना नहीं चलेगा. So of course माउस रहेगा तो भी राइट क्लिक नहीं चलेगा आपका. So conaio.h is another header file जिसके अंदर getch का डेफिनेशन है. These are the things which we are going to learn from the day 1 and going to use till the last day of the syllabus.
तो डे 1 में हमने 2 हेडर फाइल सीखा, बट डे लास्ट में टोटल हमको 3 या 5 ही हेडर फाइल सीखना है. डोंट वरी. सो इट्स नॉट कि ह्यूज है. सो नाउ again I am compiling. I got 0 error. I am running. Can you see my output is now in front of you? Yes. I don't have to go to Windows and उसके नीचे output नहीं करना पड़ेगा. This is just because of which function? It's called getch. Okay. ठीक है. But you are getting irritated with the previous outputs. You said, sir, I don't want previous output. I got it. We have another function called CLR/SCR. What is that? As the name, clear screen. CLR/SCR. Now look at closely. When I run it, is it clear the screen? Yes, sir. Is it your screen is after output stable? Yes, it is stable. Right? So it is getch क्या काम कर रहा है and CLR/SCR काम कर रहा है. Both are different, right? CLR/SCR is for Clear screen. and getch is to hold the screen. Can I say after output? Yeah, means after using clear screen function, the previous commands that we had put into the system will not be visible. But when we use getch, those commands and the answer both will be visible. Yeah. Now what happens if I write गलती से getch की जगह पे CLR/SCR नीचे लिख देगा तो क्या होगा? सर मतलब वो रिजल्ट्स में आपने जो कमांड्स डाले वो नहीं होगा, पूरा आंसर का ही आएगा स्क्रीन ना. नहीं, I don't know. I am asking. Let's say मैं यहाँ CLR/SCR लिख दूं तो क्या होगा? What do you think? Sir, I think the answer will be displayed on the clear screen. नहीं, ऑन द क्लियर स्क्रीन मतलब CLR/SCR तो एक फंक्शन है, उसका काम क्या है? इसके पहले आपने जो दिखाया था ना पूरा ब्लैक स्क्रीन पे आया था आंसर, हाँ. उसी फॉर्मेट में आएगा वापस. नहीं, सुनो क्या होगा. When my program starts from the line number 1, पहले int a में आया, फिर CLR/SCR. क्या करेगा ये CLR/SCR? What it will do? Clear the screen. Whatever पहले था वो जाएगा. Yes. अभी सी आउट से प्रिंट हुआ ए का एक वैल्यू 17 बिकॉज ऑफ सी आउट. Yes. अनदर सी आउट से 19 प्रिंट होगा. Yes, sir. देन CLR/SCR क्या करेगा? तो फिर ब्लैंक स्क्रीन आएगा. या सो योर आउटपुट विल बी नथिंग. लेट्स चेक ऐसा ही हो रहा है क्या. आउटपुट आया और चला भी गया. आई विल शो यू आउटपुट में क्या आया. विंडो के अंदर आउटपुट में जाके देखते हैं. कैन यू सी इट्स अ ब्लैंक. अच्छा, what happens if I write it down after CLR/SCR getch? Sir, I don't think कुछ फर्क पड़ेगा because after the clear screens we don't have any commands to give तो the answer. getch क्या करेगा? होल्ड द स्क्रीन करेगा कि नहीं करेगा? हाँ. है ना. तो मुझे वो विंडो में जाके आउटपुट देखने की जरूरत नहीं है. यस और नो? Yes. ये देखो. अच्छा, what happens if I write it down getch first and then CLR/SCR? Think twice and then Then tell also me. there will be a blank screen only, no? नहीं, I don't know. मैं आपको पूछ रहा हूँ. Just Yes, think sir. I twice. think. एक मिनट. Think twice and tell me. Go line by line. Okay. Yeah. See out. Okay, so 19 will be displayed on the screen when we do the getch command.
and after that there is a clear screen command. So I think the screen will be blank. Okay, let's see. ये ये स्क्रीन अटका just because of which function? Clear screen. नहीं, स्क्रीन अटका, hold the screen because of अच्छा, get ch. get ch. Hmm. CLR 80R अभी तक रन नहीं हुआ है नीचे वाला, अभी get ch ने होल्ड करके रखा है स्क्रीन को. Now the moment I press the enter button, what happens? CLR That command SCR, will take place. या CLR SCR चलेगा. अभी मैं विंडो में जाके आउटपुट में देखूं तो क्या मिलेगा? Blank screen. Blank, correct. So I hope you are clear with get ch and CLR SCR. Yes, sir. Great. Which we have to write it down in the notebook, but वो लास्ट में अभी एक 5 मिनट के बाद लिखते हैं. तो मैं यहाँ पे एक लिखता हूं get ch का डेफिनेशन. Can you please read out? Ch is a library function which is used to hold screen and is defined in conio.h. हेडर फाइल, राइट. तो ये get ch का डेफिनेशन हो गया. Sir, what is conio.h? So it is another header file which is having get ch कोनायो के अंदर डिफाइन है. Okay. So you I give an example. You said that I am in 11th standard now. So I said, what is the proof of that? So you said, I have a 9th pass out ka certificate. I have a 10th prelims ka certificates. So you are defining that prelim examinations that yes, till the month of February you were in the 10th standard. तो मुझे समझा. So get ch किसके अंदर डिफाइन है? कौन io.h के अंदर? So like integers are defined in data types. Yes. Okay. बट डेटा टाइप्स के लिए कोई हेडर फाइल नहीं लगता, लेकिन गेट ch लाइब्रेरी फंक्शन के लिए आपको कंपलसरी हेडर फाइल ऊपर इंक्लूड करना पड़ेगा, और एल्स वो समझेगा नहीं उसको. लाइक इट इज लाइक आइडेंटिफिकेशन कार्ड. So if I'll write it down here, another statement for CLR SCR is a library function which is used to clear screen, and it is defining again conio.h. What is cout? It's not a library function. The cout is a command, no? तो मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था कमांड. एक्चुअली Means वो ऑब्जेक्ट है, टेक्निकली वो ऑब्जेक्ट है. तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज क्लास, ये दोनों आपको 12th स्टैंडर्ड में आने वाला है. बट ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन आपको और मुझे पता है. व्हेन आई से व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट, और इफ आई से कैन यू नेम द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स नियर बाय यू, व्हाट विल यू से? any objects like a pen or a book around you. Everything is an object. But when you say pen and when you say laptop, both object represents a different category. Which category? Pen represents and laptop represents which category?
Pen comes in stationery category and Perfect. the laptop comes in electronics category. परफेक्ट, दैट्स कॉल्ड क्लास। वो कैटेगरी को ये लोग क्लास बोलते हैं टेक्निकली। एंड वो जो पेंसिल था उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो व्हेन आई से सी आउट, तो इमीडिएटली आपको स्ट्राइक हुआ ऑब्जेक्ट है, ओके, तो फिर उसका कोई क्लास भी होगा। यस, और उस क्लास का नाम है ओ स्ट्रीम। और ओ स्ट्रीम क्लास किसके अंदर है? आयोस्ट्रीम डॉट एच के अंदर। बट Okay. आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू अगेन इन अ डे वन, सो हम लोग इतना याद रखते हैं, सी आउट इज एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज डिफाइंड इन आयोस्ट्रीम डॉट एच, दैट्स इट। तो सी आउट के साथ हमने कुछ और भी यूज किया ऐसा, तो उसको लेस देन नहीं बोलेंगे, टेक्निकली इट्स ए इंसर्शन ऑपरेटर। तो वो वैल्यूज को मतलब इंसर्ट करता है। हाँ, स्क्रीन पे। बेसिकली लेस देन इज एन इंसर्शन ऑपरेटर। उसके राइट साइड में जो भी लिखा वो स्क्रीन पे दिखेगा, कैन आई से दैट? हाँ सर। बट यू आर नॉट अलाउड टू यूज कॉमा ऑपरेटर। देखो जरा, कॉमा ऑपरेटर अलाउड नहीं है। आपने जैसे लिखा डबल कोट्स के अंदर वैल्यू ऑफ ए, उसके बाद आपने कॉमा नहीं यूज किया, उसके बाद आपने अगेन इंसर्शन यूज किया, देन योर वेरिएबल ए, and then ENDL is a keyword. What is ENDL? क्या करता है वो? So ENDL क्या करता है, तो that I'll show you. विदाउट ENDL करके दिखाओ तो आपको पता चले। एक मिनट जरा, बिफोर दैट मैं वापिस आपको आउटपुट दिखाता हूँ। प्लीज लुक एट वेरी क्लोजली, जरा ध्यान देना, पे अटेंशन। कैन यू सी एक ए के बाद स्पेस है, एक ए के बाद स्पेस नहीं है? यस सर। अभी देखना जरा किधर है। तो कैन यू सी यहाँ पे मैंने ए के बाद एक स्पेस दिया है, सो यहाँ नहीं दिया था। कंपाइल एंड रन। नाउ व्हाट? मैं एंडल निकाल देता हूं, मुझे बताना व्हाट इज द डिफरेंस। एंडल निकाल दिया तो उसके पहले का इंसर्शन भी रख के कोई फायदा नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस, कैन यू सी? सर द सेंटेंस मतलब वो अलग अलग है, दोनों स्टेटमेंट्स अलग अलग है। पहले नहीं, वाले में दोनों अलग थे, मतलब डिफरेंट लाइंस पे थे, और ये सेम लाइन पे विदाउट एनी ये स्पेस है। हाँ, विदाउट एनी न्यू लाइन, कैन आई से दैट एंडल इज प्लेइंग अ रोल ऑफ न्यू लाइन? हाँ, मतलब एंटर की का फंक्शन। यस, लाइन ब्रेक कर देता है, कैन आई से लाइन ब्रेक कर देता है? यस सर। सो दैट्स नॉट हैपनिंग हियर। तो एंडल इज बेसिकली फॉर बेटर फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, लिखा नहीं लिखा एग्जाम में चलता है, बट प्रैक्टिस रखोगे तो अच्छा है ऐसा। ओके, अभी क्या रह गया? मेन। काफी कुछ लिखना है आपको, हाँ आज। एंड निहार, यस सर। आई डोंट वांट वो डिजिटल वाला, मुझे नहीं चलेगा। हाँ जरा भी यू सेड सर फोटोग्राफ ले लूं, मैं बाद में लिख दूंगा। आई वांट टू बी रिटन इन फ्रंट ऑफ मी ओनली, वंस आई से सो, नॉट नाउ। बट एक एक अलग इम्पैक्ट होता है व्हेन यू राइट इट डाउन इन अ बुक, यस सर। है ना? तो कंसीडर दैट फॉर द बेस्ट रिजल्ट
and for the best knowledge, whatever the method I am doing, just accept it without any question. Okay, that is definitely in your benefit. मेरे को कॉपी पेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है चैट बॉक्स में, बट देन इट विल नॉट वर्क, है ना? Okay. ओके, अच्छा, चलो, मेन इज अ फंक्शन. व्हाट इज दैट? एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम. पूरा प्रोग्राम मेन से ही स्टार्ट होता है. योर फ्लैट बिगिंस फ्रॉम द हॉल. कोई भी फ्लैट में पहले बेडरूम या किचन या वॉशरूम नहीं हो सकता. दैट्स द एंट्री पॉइंट. इन केस अगर बेडरूम है तो उस फ्लैट का एंट्री कोई और साइड से होगा. जैसे ग्राउंड फ्लोर में होता है. डू यू हैव नोटिस्ड एनी टाइम कोई पुराने बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर होते हैं ना, तो वो लोग अपना मेन डोर का एंट्रेंस दूसरी साइड कर देते हैं, गैलरी की साइड. Hmm. एक्चुअली उनका डोर लेडर्स की तरफ जाता है, लेकिन वो उसको क्लोज करके, ग्राउंड फ्लोर है तो गैलरी की तरफ से एंट्री ले लेते हैं. हाँ. सो जहां से एंट्री मारा, दैट इज द मेन. एवरी प्रोग्राम मस्ट रिक्वायर्ड मेन. उसके बिना प्रोग्राम पॉसिबल नहीं है. एंड इट इज अ फंक्शन. Library function. नो. वेरी गुड क्वेश्चन. इट इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन. तो मैं नहीं लिख रहा था, but on your curiosity I am writing main is a user defined function. What do you mean by user defined? हमने बनाया. Okay. later on हम लोग उसको भी डिटेल में देखेंगे. what do you mean by library function, what do you mean by user defined function. अभी के लिए मैं ऐसा बता सकता हूं आपको, that you maybe are wearing the ready-made garments. हाँ, So समझ गया मैं. that's called Already. that's called library function. And there is Hmm. something called as tailor made. That is user defined. Yeah, that's called user defined. Okay, great, superb. As Sir, far as it is going, curly brackets. yeah, curly brackets को क्या बोलेंगे? Its body. इसके नीचे लिखूं मैं, इसके नीचे curly brackets, curly डेफिनेशन ऑफ मेन है. डेफिनेशन ऑफ मेन है वो. मतलब कर्ली ब्रैकेट्स मतलब डेफिनेशन, या तो बॉडी बोल सकता हूं मैं. ओके, ये सब कुछ प्रोग्राम का हो गया. एक बार जरा वापिस में देखूं स्क्रीन पे कि क्या क्या लिखा. तो सबसे पहले मैंने हेडर फाइल लिखा. मैं बाजू में डबल स्लैश करता हूं ना, दैट मीन्स ये कमेंट्स हो गया. कमेंट्स, क्या हो गया? कमेंट्स, कमेंट्स. कमेंट्स का मतलब हम लोग नोटबुक में लिखते हैं ना. कोई ऑथर का बुक है, यू यू गॉट अ गुड वर्ड, बट उसका मतलब नहीं पता, तो यू आर राइटिंग पेंसिल से रिमार्क करके, डिक्शनरी में से देख के उसका सम मीनिंग, दैट्स कॉल्ड रिमार्क्स. वैसा ये कमेंट्स है. हेडर फाइल. योर प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी प्रोग्राम बिगिंस विथ हेडर फाइल फॉलोड बाय मेन. अभी एक वार्निंग आ रहा है, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू. तो ये लोग का बोलना है कि भी आपका मेन के आगे या तो वॉइड लिखो या तो इंट लिखो. इसकी भी एक स्टोरी है, लेकिन आज नहीं करेंगे. खाली वो वार्निंग हटाने के लिए मैंने वॉइड मेन लिखा कि भाई वार्निंग गया क्या. इज इट जीरो वार्निंग, जीरो एरर? कैन यू जस्ट सी दैट? कंपाइल करूं तो जीरो वार्निंग, जीरो एरर. Yes, sir. अच्छा, हाउ मेनी लाइन्स इन योर प्रोग्राम? कैन यू सी? आप काउंट करने बैठोगे
तो मैं स्क्रॉल करूंगा तो नीचे एक नंबर चेंज हो रहा है, कैन यू सी दैट? रेशियो वो चेंज हो रहा है। हाँ, तो वो 1 है ना, वो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल है, ये वाला वर्टिकल है ये। हाउ मेनी लाइन्स? तो 18 लाइन्स, कैन आई से दैट? कैन यू सी इट इज 18 लाइन्स? यस और नो? यस सर। सो मैं अभी कंपाइल करता हूं मैं, तो मुझे 18 लाइन्स कंपाइल्ड आना चाहिए। हाउ मेनी लाइन्स कंपाइल्ड दिखा रहा है? सर आपका कर्सर बीच में हो रहा है। या हाउ मेनी लाइन्स कंपाइल्ड दिखा रहा है इधर? यहाँ पे दिखा रहा है। सर वो नहीं, माउस का पॉइंटर। हाँ, 1940 है। हाँ, या 1040। 1040। बट देन उतना लाइन तो हमारे प्रोग्राम में है ही नहीं, किधर से आया बाकी का? सो इट केम फ्रॉम, उसने क्या किया मालूम है? उसने वो आयो स्ट्रीम को भी कंपाइल किया एंड कौन आयो को भी कंपाइल किया। दैट मीन्स अगर मैं एक निकाल दूं तो लाइंस कंपाइल्ड चेंज हो जाएगा। मैंने कमेंट्स किया, कैन यू सी कमेंट्स? मतलब अभी ये मेरा पार्ट ऑफ प्रोग्राम नहीं है, ये लाइन कौन आयो इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई प्रोग्राम। तो मुझे CLR SCR में एरर देगा वापिस, उसको भी कमेंट्स कर दिया और गेट CH को भी कमेंट्स कर दिया। तो अभी लाइंस कंपाइल्ड कितना आता है जरा देखते हैं। कैन यू सी 189 893 हो गया। हाँ सर। So again, this is just for the knowledge point of view. It has nothing to do with your syllabus. सर देन हम लोग डालते ही क्यों है तो क्या इंक्लूड आयो स्ट्रीम, क्या? इंक्लूड आयो स्ट्रीम वगैरह। आयो स्ट्रीम मुझे नहीं डालना था, उसने मुझे फोर्स किया पुटअप करो। देखो मैं निकाल देता हूं अभी भी, ये कमेंट हो गया एंड आई कंपाइल, आई गॉट 2 एरर। क्या एरर है पढ़ो? अनडिफाइंड सिंबल सी आउट अनडिफाइंड एंड। सिंबल, अनडिफाइंड। अच्छा उसके वाई? लिए डालना पड़ेगा। सी आउट के लिए डालना पड़ेगा डियर, और एंडल के लिए डालना पड़ेगा। ओके तो फिर कौन आयो किसके लिए लिखा? सर फॉर, अरे कौन आयो किसके लिए था, भूल गया। हाँ, गेट कोई सी बात। एच। हाँ, यहाँ लिखा है मैंने, गेट ch इज अ लाइब्रेरी फंक्शन विच इज डिफाइन इन define used to define this and define in header file this। अगर मैंने कौन आयो लिखा है मतलब आपको हैशटैग में कौन आयो लिखना पड़ेगा अगर आप गेट ch को यूज कर रहे हो तो। इज दैट क्लियर नाउ? निहार? यस सर। गुड। तो मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया, पार्ट का नाम था, सिलेबस का नाम था, टॉपिक का नाम था कांस्टेंट और वेरिएबल। बट मैं उसको थियोरेटिकली समझा रहा था, तो यू मे अंडरस्टैंड, मे नॉट अंडरस्टैंड, हैड सम डाउट, बट वंस आई रोट माय प्रोग्राम इट इज सॉरी क्रिस्टल क्लियर। ओके, ये वेरिएबल है, सॉरी, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। सिंपल, कोई बड़ा सा प्रोग्राम नहीं लिखा है हमने। So we will begin with right now एंटायर प्रोग्राम नोटबुक में लिखेंगे और उसका रिलेटेड जो जो कंपोनेंट्स था वो हम लोग यहां से कॉपी करेंगे। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट निहार कि व्हाइल यू आर कॉपिंग अ प्रोग्राम, इट हैपेंस कि आपका कॉपी किया हुआ प्रोग्राम को जब भी आप रन करते हो तो यू विल गेट एरर्स। क्यों? टेल मी। मेरा प्रोग्राम आपने रन किया, 0 एरर था, आपने कॉपी किया, फिर आप अपने कंपाइलर में रन कर रहे हो, आपको एरर आ रहा है, ऐसा क्यों? व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी? सर मे बी मैंने स्पेसेस नहीं छोड़े होंगे तो। बिल्कुल, आपने सेमीकोलन नहीं लिखा है, आपने कुछ कैपिटल में लिख दिया,
तो वो अच्छा, आपने टाइपो रहेगा कॉपी तो भी रॉन्ग किया, सो मैनी हाँ पॉसिबिलिटी, आपने कॉपी भी रॉन्ग किया, ऐसा भी पॉसिबल हाँ सर टाइपोस बोला था है ना? सो ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल. सो लेट अस कंसिडर कि अगर ऐसा होता है तो हम लोग हाईएस्ट वेटेज प्रोग्राम को कॉपी करने के टाइम देंगे. द वे यू कॉपी, द वे यू आर गोइंग टू राइट इन योर एग्जामिनेशन. आपको ऐसा प्रोग्राम पूछेंगे पूरा का पूरा एग्जाम में, 5 मार्क्स, ईच प्रोग्राम इज 5 मार्क्स और 4 मार्क्स. तो इजी मार्क्स है इजी है, बहुत इजी है, बट स्टूडेंट्स को नहीं आता तो वो लोग रट्टा मारते हैं. जिसको आता है वो एकदम इजीली लिखता है, सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द इंटरेस्ट एंड कॉन्सेप्ट इज क्लियर है. ऐसा चलो हम लोग कॉपी करते हैं फर्स्ट प्रोग्राम को एंड देन वी राइट इट डाउन अबाउट व्हाट इज हेडर फाइल एंड क्या है वो पीछे नोटपैड में लिखा हुआ है मैंने. तो मैं एक सर व्हाइट बैकग्राउंड क्रिएट करता हूं और उसके ऊपर ये ब्लू स्क्रीन रखता हूं, देन इट इज रीडेबल. आई कैन डू लाइक दिस आल्सो, दिस इज मच रीडेबल. सर तो भी आप शेयर स्क्रीन करते हो ना तो मतलब आधी स्क्रीन ही आती है बहुत कम साइज है रीडेबल ही नहीं है तो आप अभी के लिए खाली व्हाट्सएप करो ना मैं अभी लिख देता हूँ हाँ तो मैं उसका ऑल्टरनेटिव देता हूँ ना आपको. आई डू दैट, रुको. वो आधी स्क्रीन आई है बिकॉज ऑफ डॉस में ऐसा ही होता है, फुल स्क्रीन आपका शेयर स्क्रीन में नहीं आएगा. वेट, मैं उसको क्या करूंगा, हमारा प्रोग्राम का नाम क्या है, constant.cpp है, तो उसको हम सर्च करेंगे तो मुझे कहीं पे मिलना चाहिए, बिन फोल्डर में मिलेगा constant.cpp. कैन यू सी constant.cpp? वो एक्चुअली मुझे एक्रोबेट रीडर में दिखा रहा है लेकिन है वो .cpp and I can open it in a notepad. Open with notepad and I can increase the font size as well. Is it readable now? yes sir Great. I'll sir just what should I give the heading as yeah, I'll write it down your heading also. Write a program to demonstrate the use of variable and constant. I'll bring the one glass of water. Meanwhile, you can copy and complete. एक भी कैरेक्टर कैपिटल में नहीं है. ओनली डबल कोट्स के अंदर लिखा वो वैल्यू का v यू कैन राइट एज अ कैपिटल. अगर स्मॉल लिखा तो भी फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल लिखा तो भी नहीं फर्क पड़ता, है ना? हाँ सर सो बी केयरफुल व्हाइल यू आर कॉपिंग. I'll just come in a minute. Yes. So once copied, just let me know. So I'll change the screen. yes sir done Great. So now we will write it down regarding program हमने क्या लिखा. That is from here. यहाँ से इतना. सर इधर ENDL नहीं है हाँ
आपने जो प्रोग्राम अभी नोटपैड में लिखा था ना, हाँ हाँ, कॉपी पेस्ट, उसमें ENTL नहीं है, तो मैं ऐड करूँ या ना करूँ? तो यहाँ करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे सेमीकोलन निकाल देना, कैंसिल करना पड़ेगा। खाली एक लाइन कैंसल कर दो, दूसरा लाइन लिख दो उसमें। This will help a lot even in 12th standard, remember। तो हमको ये सब कुछ लगेगा 2 साल के लिए, तो आई रिक्वेस्ट यू टू मेंटेन अ वन न्यू लॉन्ग बुक फॉर 11th स्टैंडर्ड इटसेल्फ। अच्छा, स्क्रॉल हो गया। हो गया, हम्म, यहाँ से कॉपी करना। डेफिनेशन है ना ये? हाँ, ये सारे डेफिनेशंस, ये सब कुछ ना आपको वो बुक में नहीं मिलेगा, और मिलेगा सर तो विच अलग बुक? स्टाइल में मिलेगा। दैट्स द रीजन आई सेड कि आप कॉपी करो प्रॉपरली। सर कौन सी बुक है? बुक मेरे पास टीपीएस का है, दिस इज द बुक। टीपीएस का पतला सा बुक है, CS1 CS2 का कंबाइन है। तो इन द पेपर 12th 1 and 2 स्टैंडर्ड इट है इज ना? सेपरेट बुक या। एक सेकंड, मेरे पास भी एक बुक है, आई जस्ट ब्रिंग इट आफ्टर राइटिंग। हाँ, मेरे पास ये पुराना है, हाँ, लेकिन तो अभी कवर पेज चेंज हुआ रहेगा, हाँ सर, पर्पल अभी। दैट इज डिफरेंस। बट ना ये लोग ऐसा नहीं करते कॉलेज में ना, दे से समटाइम्स डिफरेंट बुक बोल देते हैं कि ये बुक मत लो, दूसरा बुक लो। एंड उन लोग का भी पब्लिकेशंस के साथ अपना अपना सब सेटिंग रहता है, तो दे से नीतिका पब्लिकेशन करके कुछ बुक है। सर लेकिन मैंने ऑलरेडी टीपी भाटिया में कांटेक्ट किया, उन्होंने ही बोला कि TPS के करा रहे हो लोग अभी। है ना, ग्रेट, वो अच्छा है, फिर कोई इश्यू नहीं। अच्छा डन। या, ग्रेट। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। अभी थोड़ा मैं ऊपर लेके जाता हूँ आपको, सो दैट एक बार क्लियर हो जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल, डेटा टाइप एंड कांस्टेंट। तो आई वुड लाइक यू टू राइट इट डाउन। ये लिखना इतना सा खाली डेटा टाइप्स में, 1 2 3 4, एवरीथिंग इज इन स्मॉल, प्लीज मेक श्योर। डेटा टाइप्स टाइटल देना। ओके।
सर पूरे 11th स्टैंडर्ड के लिए ओनली 11 चैप्टर्स है, 8 चैप्टर्स है। स्मॉल सिलेबस है। खाली 8 चैप्टर्स है पूरे 11th 8 के लिए। किधर है डियर? 5 + 4 9 है ना? मैंने देखा नहीं, लेकिन 9 ओनली 9 चैप्टर्स फॉर एंटायर 11th स्टैंडर्ड। हाँ, लेकिन योर वन चैप्टर कॉल्ड थर्ड वन C++ is a one subject C++. Then you got one chapter called Visual Basic is another subject. 100 मार्क्स का मेरा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में। समझा क्या आपको? हाँ सर। ऐसे ही दे दिया है चैप्टर का नाम C++, उसके अंदर आधा C++ कवर हो गया और आधा C++ यू हैव इन 12th स्टैंडर्ड। सबसे बड़ा चैप्टर है थर्ड वन C++, और वही मैंने स्टार्ट किया अभी। सर कितना टाइम लगेगा अप्रोक्स? आवर्स मुझे नहीं समझता, शायद 50 आवर्स, 30 to 50, 40 to 50 आवर्स लगता चाहिए, मुझे लगता है लगना चाहिए। आज वेरी 2 आवर्स होगा। हाँ, वेरी फ्रेंकली आई मीन कभी ऐसा कैलकुलेट नहीं करते हम लोग कि भी कितना आवर्स लगेगा, बट यूजुअली ये हम लोग ट्वाइस इन अ वीक राइट नाउ अगर करें तो 2.5 months 3 months में आराम से हो जाएगा। ओके सर। यू लाइक टू और डू सर, दैट वे? हाँ सर। यू लाइक टू डू दैट वे 3 months में हो जाए, वो अच्छा है आपके लिए? सर मैं तो वीक के 4-5 डेज भी कर सकता, मीन्स अभी थोड़ा फ्री हूँ। नहीं। नहीं, जब कॉलेज चालू होगी ना तब प्रॉब्लम होगा थोड़ा, हाँ, इसलिए अभी फ्री हूँ मैं, तो जितना आप करा सको तो कर। अच्छा, बट देन सी निहार, देयर इज अ वन इश्यू कॉल्ड, ये स्कूल का ट्यूशंस नहीं है राइट, कि भाई एक बार सिलेबस हो गया देन आई एम नॉट गोइंग टू बैक एंड अगेन, हाँ हाँ। यू नो। तो वो यू शुड हैव दैट मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ सर मैं उसको रिवीजन करता रहूंगा। और वैसे भी देखो, एक बार मैंने कराया, उसके बाद कॉलेज वाले कोई भी क्वालिटी का कराने दो, आपको हर एक चीज समझेगी। सिंपल है, आप उसको क्या कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो सेकेंड टाइम। तो कोई भी नहीं क्वालिटी का कराने दो ना, वो अच्छा ही आपको तो समझेगा ही समझेगा, आपके बाजू वाले को नहीं समझता है लेकिन आपको समझेगा, वो श्योर है। सर। तो हम लोग देखते हैं थोड़े दिन में, आपका प्रोग्रामिंग देखेंगे तो आइडिया आएगा हाउ यू कैप्चर, बट ट्वाइस इन अ वीक अभी के लिए हमने मेंटेन किया है। फिर अगर आपको उससे भी आगे करना है तो आई विल स्पीक विद सुनीता ऑल्सो, आई विल स्पीक विद माई स्केड्यूल, मेरा भी स्केड्यूल चेक करता हूँ, फिर थ्राइस कभी पॉसिबल हुआ तो थ्राइस ले लूंगा। अच्छा सर, और एक बात, इफ पॉसिबल मतलब थोड़ा जल्दी नहीं हो पाएगा 3 to 5 के आसपास, मतलब टाइम स्लॉट में? मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, वो मैडम के लिए 4 o'clock पॉसिबल है। मेरे लिए आई एम ऑलरेडी एंगेज बिटवीन 3 o'clock to 5 o'clock, ऐसा है। तो मैंने पापा को बताया था इन अ फर्स्ट ऑफ कन्वर्सेशन कि भाई मैं मुझे ऐसा था कि 4 o'clock ऑनवर्ड्स चलेगा, तो मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि मैं 5:15 से आई कैन टेक, मेरा 5 o'clock तक रहता है तो 15 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा मुझे, एंड 5:15 से आई कैन टेक, ऐसा है मुझे। आई कैन वेरी वेल अवेलेबल इन द मॉर्निंग। तो लेकिन मॉर्निंग में मेरे लेक्चर्स रहते हैं ना। हाँ, ये इश्यू है। अच्छा तो सर, आप वीकली ट्वाइस रखना चाह रहे हो ना अभी तो? ट्वाइस। ओके, एक सेकंड सर, खाली एक सेकंड। एक्चुअली है ना, मेरे 2 डेज है जब मॉर्निंग को फ्री रहता हूँ मैं। हाँ हाँ। एक्चुअली एक सेकंड, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे मैं मॉर्निंग्स को फ्री हूँ। तो आई प्रीफर सैटरडे को मेरा हॉलीडे है, तो आई प्रीफर बाकी के 3 दिन में मैं 2 दिन ले लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर, लेकिन टाइमिंग्स क्या होंगे? बिकॉज मेरा 11 o'clock से क्लास रहता है। अच्छा, हाँ, तो मैं मॉर्निंग 7 से 11 फ्री हूँ।
उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है 7 तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होगा, मैं थोड़ा मतलब सर। 9 to 11 भी चलेगा अगर आपको कंफर्टेबल हो तो। 9:30 रख सकते हैं पक्का, 9:30 to 11, बट 11 o'clock एग्जैक्टली आपका क्लास रहता है? हाँ सर, मीन्स ऐसे ऐसे तो 5 मिनट पहले से लॉग इन कर लेते हैं सब लोग, लेकिन मैं एग्जैक्टली 11 o'clock को लॉग इन करूंगा तो फिर मेरा कुछ मिस आउट नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करने का। देयर शुड बी अ वन लॉजिकल ब्रेक बनता है, फिजिकल ब्रेक भी बनता है, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में ऐसे नहीं भागने का। इतनी जरूरत नहीं है तेरी, आपकी और मेरी। ठीक है, मैं जरा एक बार स्केड्यूल में बिठाता हूँ। 9:15 मुझे लगता है अच्छा रहेगा। 9:15 to 10:45 किया ना, तो यू विल ऑल्सो हैव अ 15 मिनट्स का एक ब्रेक, तो कुछ ले लिया। और 9:15 भी रहा ना, तो मेरे को 9 o'clock थोड़ा जल्दी लग रहा है, बट स्टिल आई चेक आउट विद द स्केड्यूल। हम लोग ग्रुप में मॉर्निंग में वी हैव वॉक जॉग एंड एक्सरसाइज का सब प्रोग्राम चल रहा है, तो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब इट। बट देन 2 दिन है ना, तो मैं 9:15 वर्कआउट कर लेता हूँ। एक बार मुझे वापिस डे बताना, मैं आपको चैट में आप ही के व्हाट्सएप में मैं लिखता हूँ। ओके, ट्यूसडे। निहार, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेनसडे, फ्राइडे, सैटरडे। फ्राइडे, सैटरडे, these are for temporary, right? मतलब मे बी सम वीक में आपका स्केड्यूल चेंज हो जाएगा ना, देन यू विल बी एंगेज मॉर्निंग 7 से। नो सर, दिस इज परमानेंट। मतलब हम लोग का एक फिक्स टाइम टेबल है जो हाँ, क्लासेस है ना IIT सर उसका, उसमें हमें ट्यूसडे और वेडनेसडे को क्लासेस नहीं रहते हैं। बट मॉर्निंग में भी नहीं अभी रहते। नो सर, नहीं रहते। और हाँ, थर्सडे फ्राइडे को 8 to 10 है ना, बायो का लेक्चर रहता है। और मैंने बायो नहीं लिया है, आई एम अच्छा, PCM। बराबर। लेकिन अभी देखो, अभी टेम्पर मतलब 1 महीने के आसपास के लिए तो यही रहना चाहिए स्केड्यूल, बिकॉज बराबर। उसके बाद में क्या हो रहा है कि हम लोग के ना मतलब बहुत सारे बैचेस है। और हम लोग के पहले भी थोड़े बैचेस है जिन्होंने हमसे लाइक 15-20 डेज पहले स्टार्ट किया है। हाँ, उसके बाद मर्ज करेंगे। मतलब बाद में उन लोग का वीकली थ्राइस रहेगा, लेकिन हम लोग का वीकली 5 टाइम्स रहेगा लेक्चर, ओके, कितने का बैच टू साइज गेट है ट्रैक आपका? ऑन ट्रैक। हाँ, आपका कितने का बैच साइज है? 50। 50। यस सर। बराबर। ट्यूसडे, वेनसडे, फ्राइडे, सैटरडे आज है, तो अगले वीक में ट्यूसडे, वेनसडे, ट्यूसडे और फ्राइडे रखना चाहिए, तो गैप मिलेगा थोड़ा आपको होमवर्क करने का। ट्यूसडे एंड फ्राइडे आई विल बी फाइन। मैम को मैं बोलता हूँ वेनसडे ले ले, और इफ पॉसिबल मंडे या थर्सडे। कंटिन्यूअस 2 दिन हो जाएगा तो अभी ठीक है, बट अभी उनको बोलेंगे 2 दिन इवनिंग में 4 to 6 एवरीडे यू आर फ्री, राइट? हाँ सर, फ्री तो हूँ। तो मैं मैम को बोलता हूँ, उनको चॉइस कौन सा है, थोड़ा एक दिन का गैप तो चाहिए। मंडे एंड थर्सडे मुझे लगता है बैठ रहा है, मंडे एंड थर्सडे। ओके, बट बाद में वो शाम को ही हो पाएगा, सुबह को नहीं हो पाएगा मंडे थर्सडे को। हाँ, वो तो उनको शाम को ही लेना है। ओके ठीक है सर। सर उनको, एक्चुअली क्या है, आपका जैसा वर्कआउट का है ना वैसा मेरा भी था वर्कआउट का। हाँ मतलब हाँ मेरा ये रहता है 6 to 8 में नीचे खेलने जाता हूँ, उसमें मेरा हाँ, पूरा वर्कआउट हो जाता है। परफेक्ट, परफेक्ट। तो मैम को मैं पूछूं मॉर्निंग के लिए बाकी के 2 डेज? नो सर, मैं वो 6 o'clock तक वो ले रहे हैं तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरा 6 to 8 ही है वैसे भी हाँ, मैम नीचे को जाने वैसे का। भी मॉर्निंग में नहीं पॉसिबल होगा, मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग में शील बी मोर कंफर्टेबल। मैं मॉर्निंग ले लेता हूँ, आई विल बी हैप्पी। 9:15 से 10:45 राइट नाउ लेता हूँ, फिर जरूरत पड़ा तो मैं धीरे धीरे चेक करके 9 o'clock वर्कआउट करता हूँ। ओके सर। तो मैं तो आपको इन्फॉर्म करता कंफर्म। हूँ, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ मैम से कोऑर्डिनेट करके कौन से 4 डेज अगले वीक के रखना है। ओके सर, आप ये नंबर जो जो नंबर पे आपने अभी मैसेज भेजा ना, वही नंबर पे भेजना, मॉम को हाँ, मैसेजेस मत भेजो। अच्छा ऐसा है। हाँ सर। नहीं तो, मतलब वो वैसे भी रीड ही नहीं करते, सो नहीं आप बट मुझे ही मेरा भेजिए। मेरा नहीं, हमारे यहाँ से एक सिस्टम है, जो स्केड्यूल मैं स्टूडेंट को भेजूंगा वो स्केड्यूल मैं एक पेरेंट को तो भेजूंगा ही भेजूंगा। तो ठीक है एक, सर, तो आप भेजिए। हाँ, एक 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 मेरी स्टाफ है, एक ब्रॉडकास्ट बनाएगी और मे बी ग्रुप बनाएगी। आई डोंट नो, सी विल बी कंफर्टेबल, जो भी है वो कर लेगी। कल कल तो उसका हॉलीडे है, संडे वो ग्रुप बना लेगी। मैडम
आपको हम लोग कोई भी प्रोफेसर्स को इंक्लूड नहीं करते, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी कभी आपको डिस्क्लोज नहीं होंगे. यू हैव टू ओनली कोऑर्डिनेट सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट इज अश्लेषा मैडम और जिज्ञा मैडम, दोनों के नंबर्स उसमें रहेंगे ग्रुप में. वो दोनों में कांटेक्ट नहीं हुआ तो उसके ऊपर मैं हूँ, मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हैं. तो ये तीनों यही को आपको नंबर है ना सर आपका? सॉरी, हाँ मेरा यही नंबर है. आई हैव वन इज व्हाट्सएप नंबर, अनदर इज यूजुअल नंबर. तो दोनों नंबर मैं आपको शेयर करके रखूंगा. कभी नेटवर्क की इश्यू होती है, आजकल वोडाफोन की इश्यूज चल रही है वीआई की, तो मैं जियो का नंबर भी आपको शेयर करके रखूंगा. राइट. तो वो सारे नंबर्स उसमें रहेंगे, सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट देयर इटसेल्फ. तो वो उनको भी स्केड्यूल पता रहना चाहिए. माय पॉइंट इज, मेरा कंसर्न खाली उतना है कि पेरेंट्स को भी स्केड्यूलिंग पता होनी चाहिए. नॉट बिकॉज कि आप बंक करने वाले हो, बट जस्ट एज अ इंटेग्रिटी, है ना. तो ऐसा है, अगर मॉम नहीं देखने वाली है बट घर पे मॉम रहती है ना, तो मैं मॉम का नंबर ही ऐड करूंगा रादर देन डैड का. बट देन सर आपकी मर्जी. इफ डैड वांट्स तो डैड का, आप बोलो किसका नंबर करूं मैं. सर मम्मी का ही करो, डैड तो वैसे भी ऑफिस में रहते हाँ हैं. वही ना, इसके लिए तो वो थोड़ा चेकिंग भी हो जाता है ना, वो बहाने एटलीस्ट. तो वो अच्छा रहेगा. ठीक है, चलो ये हो गया. देन वन मोर थिंग इज रिक्वायर्ड, मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ. यस, दिस इज इम्पोर्टेंट. कैरेक्टर एरे एंड कैर एंड स्ट्रिंग. आप ये दो एग्जांपल ले लो, वाई एंड यस का, एंड डबल कोट्स के वाई का, और ओके, उसके बाजू कांस्टेंट में का एरो एग्जांपल्स करके लिखूं मैं? लिखना. सिंगल कोट में वाई मतलब कैरेक्टर कांस्टेंट, डबल कोट में वाई मतलब स्ट्रिंग कांस्टेंट. स्ट्रिंग कांस्टेंट लिखना. कैरेक्टर एरे कहीं और जगह लिख देना, स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर एरे, मतलब मोर देन वन कैरेक्टर. सर सिंगल में क्या था? कैर, नो कैर सर वो नहीं. कांस्टेंट. सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में. हाँ, उसको कैर कांस्टेंट बोलते हैं. ओके, दैट्स अ कैरेक्टर कांस्टेंट. उसको सिंगल कोट बोलते हैं. ओके, डबल कोट वाले पूरे यस को? स्ट्रिंग कांस्टेंट. ओके, स्ट्रिंग कांस्टेंट. और डबल कोट वाले वाई को? वो भी सेम एग्जांपल, string constant. Yeah, just to make you aware कि सिंगल कोट y एंड डबल कोट y इज डिफरेंट. एंड अभी नीचे कहीं पे लिख दो स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर एरे, और एक सिंपल लैंग्वेज में कलेक्शन ऑफ ऑलरेडी लिख दिया मैंने. कैरेक्टर्स. या, ग्रेट. ठीक है, और तो कुछ भी इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, बाकी इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन था. तो या फाइन, बस आज इतना ही रखने हैं मुझे. आप इसमें खाली, या हो गया. एक बार आप गो थ्रू करो वॉट एवर यू हैव रिटर्न. मैं आपको रैंडमली कुछ पूछूंगा,